the Indian military rescued 12 Chinese crew members from a cargo ship that caught fire and exploded off the coast of Kerala. We need to remember that both the Chinese and the Indian armed forces have made outstanding cooperations and great sacrifices in UN peacekeeping operations. ये बयान आपने सुना ना, ये बयान सवाल खड़े करता है कि क्या कोई महाशक्ति किसी के एहसान के नीचे दब सकती है? क्या इतिहास की कड़वाहट को इंसानियत की एक बूंद मिटा सकती है? आज मित्र देश के इस एपिसोड में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसने दुनिया के सबसे बड़े ड्रैगन को भारत के सामने झुककर शुक्रिया कहने पर मजबूर कर दिया। ये खबर किसी युद्ध की नहीं बल्कि उस महान एहसान की है जिसे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने अपनी स्थापना के 99 साल पूरे होने पर पूरी दुनिया के सामने स्वीकार किया। आज हम उस रात की परतें खोलेंगे जब समंदर के बीचों बीच चीन के 12 नाविक अपनी आखिरी सांस गिन रहे थे और यमराज उनके सामने खड़े थे। उस वक्त कौन आया देवदूत बनकर? क्यों चीन के डिफेंस अताशे रियल एडमिरल यू जियान को कहना पड़ा कि भारत का एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे? आज की ये रिपोर्ट भारत की उस नैतिक विजय की गाथा है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जगह केरल का तट, मौसम इतना खराब था कि परिंदा भी पर न मार सके। चीन का एक विशाल कार्गो शिप समंदर के सीने पर रेंग रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और पूरा जहाज आग की लपटों में घिर जाता है। 12 चीनी नाविक जो अपने वतन से हजारों मील दूर थे, उनके लिए समंदर कब्रिस्तान बनने वाला था। चीन की सरकार दूर थी, चीन की सेना पहुंच नहीं सकती थी, लेकिन तभी भारतीय कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना के जाबाजों को संदेश मिलता है। हमारे कमांडो ये नहीं देखते हैं कि ये किस देश के लोग हैं, वो ये देखते हैं कि ये इंसान है। मौत के तांडव के बीच धधकती आग और ऊंची लहरों से टकराते हुए भारतीय वर्दी ने उन 12 चीनियों को एक एक करके मौत के मुंह से निकाल लिया। आज जब चीन की सेना भारत का शुक्रिया अदा कर रही थी, दरअसल वो उन 12 परिवारों की दुआओं को शब्द दे रही थी जिनके चिराग भारत ने बुझने नहीं दिए। अब क्या कहा गया चीन की ओर से, आप खुद सुन लीजिए। His Excellency Ambassador Xu Feihong and Madam Tan Yuxiu, Your Excellencies, distinguished military attaches, and your spouses, ladies and gentlemen, namaste, good evening. I'm Rear Admiral You Jian, the newly appointed Defense Attaché of China. It's a great pleasure to join all of you here tonight to celebrate the 1990th anniversary of founding of the Chinese People's Liberation Army. Over the past 99 years, the Chinese PLA has always kept in mind its fundamental purpose of serving the people wholeheartedly. It has made immortal contribution to achieve national independence, the liberation of the people, and the prosperity of the country. It's both a great wall of steel, safeguarding national sovereignty, security, and development interests, and the most lovable people in the hearts of Chinese people. Today, the Chinese PLA is striving to achieve the centenary goals for the military's development, accelerating the building of world-class armed forces, providing strategic support for the great revolution of China, and making great contributions to world peace and development. In the past of profound changes of the world and of our times, President Xi Jinping proposed the Global Security Initiative, pointing the way for countries to jointly address common challenges and work together to build lasting peace. China remains committed to the path of peaceful development, firmly pursues a national defense policy that is defensive in nature, and continues
to act as a builder of world peace, a contributor to global development, and a defender of international order. In recent years, the Chinese military has actively taken part in UN peacekeeping operations, international counterterrorism operations, maritime escort missions, and humanitarian relief, becoming a steadfast force for world peace and stability. To date, China has deployed over 15,000 peacekeeping personnel and dispatched 48 naval escort task forces, successfully completed escort mission for more than 7,200 Chinese and foreign vessels. China and India are important neighbors, and both are at a critical stage of development and rejuvenation. We are pleased to see that, under the strategic guidance of our leaders, China-India relations have returned to the correct path of improvement and development. We will not forget that last June, the Indian military rescued 12 Chinese crew members from a cargo ship that caught fire and exploded off the coast of Kerala. We need to remember that both the Chinese and the Indian armed forces have made outstanding cooperations and great sacrifices in UN peacekeeping operations. We have always believed that the common interests between our two countries far outweigh our difference. We are willing to work with the Indian side to maintain communication through diplomatic and military channels, enhance mutual trust, and promote cooperation through dialogue, and contribute to the well-being of the peoples of China and India. Finally, I wish for the continued improvement of China-India relation. I wish all our guests tonight happiness and well-being. Thank you a lot. तो रियल एडमिरल यू जियान का ये बयान कोई मामूली प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक सोची समझी कूटनीतिक जीत है। एडमिरल ने साफ कहा कि चीन और भारत अहम पड़ोसी देश हैं और हम विकास के दौर से गुजर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अब ये भी समझ लीजिए कि चीन के थैंक यू का मतलब है क्या। दरअसल इसका पहला पॉइंट है सॉफ्ट पावर की जीत। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम केवल सीमाओं की रक्षा नहीं करते, हम मानवता की भी रक्षा करते हैं। दूसरा पॉइंट है चीन की मजबूरी। सीमा पर तनाव के बावजूद चीन ये समझ चुका है कि भारत को नजरअंदाज करना उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। तीसरा पॉइंट है नेताओं का विजन। एडमिरल ने माना कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत ने रिश्तों को सही राह पर ला दिया है। ये भारत की कूटनीतिक मेज पर बहुत बड़ी बढ़त है। अब चीन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से माना कि संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत का बलिदान अतुलनीय है। एडमिरल ने यहां तक कह दिया कि हमारे साझा हित हमारे मतभेदों से कई गुना बड़े हैं और ये वही चीन है जो कल तक वीटो पावर का इस्तेमाल कर हमारे खिलाफ खड़ा रहता था, लेकिन आज वही चीन कह रहा है कि हम भारतीय सेना के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और वैश्विक साख का ही नतीजा है कि आज चीन को दोस्ती के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा है। राजनीति में कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन जब बात चीन की आती है तो समीकरण कुछ और ही होते हैं। एक तरफ चीन की सेना पीएलए अपनी 99वीं वर्षगांठ पर भारतीय सेना के आगे नतमस्तक है और भारत के एहसान का गुणगान कर रही है और 12 नाविकों की जान बचाने के लिए शुक्रिया कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ आईना कुछ और है। चीन हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को आधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है।
इसमें कोई शक नहीं कि भारतीयों ने केरल के तट पर जो किया वो भारत की महान संस्कृति और वीरता का परिचय था। भारत ने चीन के 12 नागरिकों को नई जिंदगी दी। चीन के रक्षा अताशे रियल एडमिरल यू जियान ने इसे स्वीकार भी किया, लेकिन क्या एक शुक्रिया उन सालों के तनाव को मिटा सकता है? याद रखिए, ये वही चीन है जो पाकिस्तान को JF-17 थंडर फाइटर जेट, PL-15 मिसाइल और शक्तिशाली ड्रोन भी सप्लाई कर रहा है। एक तरफ वो भारत के साथ साझा हितों की बात करता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जरिए भारत को घेरने की स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति पर काम भी जोरों शोरों से करता है। और यही वजह है कि सवाल खड़ा होता है कि क्या एहसान की बात सिर्फ एक मुखौटा है? चलिए ये भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, चीन का ताजा नरम रुख उसकी मजबूरी हो सकती है। दुनिया भर में सप्लाई चेन बदल रही है, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और सीमा पर भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी ने चीन को बैकफुट पर धकेल दिया है। ऐसे में मानवता और एहसान की दुहाई देना चीन का एक नया तरीका हो सकता है ताकि वो भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते सामान्य कर सके। भारत ने हमेशा अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम का पालन किया है। हमने दुश्मन के नागरिकों को बचाया है क्योंकि वो हमारी फितरत है। लेकिन चीन की फितरत इतिहास में धोखा देने की रही है। 1962 से लेकर गलवान तक चीन ने हमेशा पीठ के पीछे वार किया है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी बताया जाता है चीन और पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन भारत के लिए ये जहरीली साबित होती रही है। अब बात मुखौटे की तो हो गई, लेकिन सच्चाई यह है कि चीन हमेशा भारत के पीठ के पीछे वार करता है और इतिहास के पन्नों में ये दर्ज भी है। चाहे UNSC का मंच देख लीजिए या पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में हथियार देना देख लीजिए। ऐसे में सवाल ये भी है कि चीन का पाकिस्तानी प्रेम भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। चलिए ये भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। अब इस चुनौती का सबसे बड़ा पॉइंट है हथियारों की सप्लाई। पाकिस्तान की सेना आज करीब 70% से ज्यादा चीनी हथियारों पर निर्भर है। चीन उसे परमाणु तकनीक से लेकर मिसाइल गाइडेड सिस्टम तक भी मुहैया कराता है। दूसरा पॉइंट है आतंकवाद पर दोहरा रुख। जब जब भारत संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के आतंकियों को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश करता है तो चीन कूद जाता है, तो चीन अक्सर वीटो लगाकर उन्हें बचा लेता है। तीसरा पॉइंट है CPEC और संप्रभुता। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC भारतीय क्षेत्र POK से होकर गुजरता है, जो सीधे तौर पर भारत की अखंडता को चुनौती है। खैर, चीन का शुक्रिया स्वीकार है, लेकिन उसकी नीयत पर भरोसा करना फिलहाल मुमकिन नहीं है। जब तक चीन पाकिस्तान को हथियार देना बंद नहीं करता है और सीमा पर यथास्थिति बहाल नहीं करता है, तब तक उसकी दोस्ती सिर्फ एक छलावा ही होगी। भारत को अपनी सेना को मजबूत रखना होगा, क्योंकि शांति केवल शक्ति के दम पर ही हासिल की जा सकती है। अंत में सवाल वही है कि क्या चीन इस एहसान को याद रखेगा? देखिए, भारत ने अपना धर्म निभाया है, भारत ने जान बचाई, भारत ने हाथ बढ़ाया और भारत ने ये साबित किया है कि हम विश्व गुरु क्यों कहलाते हैं। चीन का ये थैंक यू भारत के उस महान संस्कृति की जीत है जहां दुश्मन को भी अब झुकना पड़ रहा है। लेकिन भारत की सेना आज भी सतर्क है, क्योंकि हम जानते हैं कि शांति केवल ताकतवर के पास ही आती है। चीन का ये एहसान अब इतिहास में दर्ज हो चुका है और दुनिया ये अच्छे से देख रही है कि कैसे भारत ने समंदर के बीच चीन का दिल जीत लिया है। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, क्या चीन के इस मीठे बोलों पर भरोसा किया जा सकता है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।